CNN News 18 is on Zero Point, the point that connects India to Pakistan. Over the last few days, the situation in this entire border region has been very, very difficult. In fact, there are people who are still living in these villages. Although they have made sure that their entire family is shifted out from these villages because it is absolutely not safe for anyone or at this point in time to trust anyone in Pakistan that they will not harm the civilians who are situated approximately 200 meters, just 200 meters away from the international border. Out here, due to security reasons and being a responsible channel, we will not tell you the name of this village or the exact location of this village, but this is one of the last villages out here in India that is connecting Pakistan. Now over here, since the last few days, the locals who have been living over here, they have been facing severe issues. One of the complaints, in fact, that has been raised by many of them is that they haven't been shifted out of here. No government advisory, specifically from the Punjab government, has come in for them to move out from here. It is becoming very difficult for these people to believe at this point in time that how can the government, the Punjab government, actually trust the Pakistanis that they will not attack civilian posts over here. Because remember, yesterday what happened? There were several projectiles that were launched from the side of Pakistan, and these were actually targeted to civilian posts, military targets, and hence it is almost impossible for any person who has any sort of a common sense to go ahead and believe that Pakistan will not attack on civilians. Now, what we are being told that the population of this last village is approximately 350 people. Out of this, women and children have already left from here. It is only the men who are standing over here. They say that it was their first priority to go ahead and make sure that the family members remain safe, and hence this entire decision has been taken. We'll try to try and speak to a few of the people who are here at this point in time. We'll try and get in a word, try to get a sense as to what are they thinking. सर, आप लोग यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? इस गांव में कितने दिनों से रह रहे हैं? हम सर 47 से 1947 से यहाँ पे रह रहे हैं। आज़ादी के बाद से आप लोग आज़ादी के बाद हम पहले पाकिस्तान में थे, जब 47 हुआ तो हम वहाँ पाकिस्तान से इंडिया में जहाँ पे बैठे हैं। जी। तो अभी पिछले कुछ दिनों से कैसा माहौल रहा है यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है इंडिया पाकिस्तान में। इस गांव का आपका क्या कैसे हालात? हमारा माहौल तो नॉर्मल है, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहते हैं, हम देखते रहते हैं इनको क्या करते हैं क्या नहीं। वैसे हमारा कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि डरने वाली, जहाँ कोई ऐसे वैसे आगे पीछे जाने वाली। हाँ, हमारे को जब भी कोई ऐसा बात होती है। लेकिन आप देखिए, कल जो पाकिस्तान ने किया, सिविलियन पोस्ट टारगेट किए, अमृतसर में किया, पठानकोट में किया, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी यहाँ भी टारगेट कर सकता है? क्योंकि 200 मीटर दूर होगा महज यहाँ से बॉर्डर। जी जी सर, हो सकता है। ये हमारा पहले भी देखा है, यहाँ पे ज़्यादा वो जो सेलिंग होती है छोटे वाली, जैसे 120 mm मोटर और अपने 80 मोटर चलती है हमारे यहाँ पे, और बड़ा फायर कभी आया नहीं, या MMG या LMG। हाँ, तो जो आगे बड़ी जाती हैं मज़ैलें वगैरह, वो तो आगे जाएंगी, जहाँ पे तो नहीं पड़ी कभी। तो अभी भरोसा है पाकिस्तान पे कि अटैक नहीं करेगा? सर, भरोसा इसके ऊपर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ये भरोसे के लायक नहीं है सर, तो इस पर भरोसा करना मूर्खता है। तो जब जान पे इतनी बन आई है तो आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं? कोई सर, हम नहीं जाएंगे, हम अपनी आर्मी के साथ रहेंगे। हमारे जो पहले बुजुर्ग थे वो भी यहाँ पे रहते थे, अभी उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। चाहे 1971 हुआ, कारगिल हुआ, जहाँ पे रहे हैं और आर्मी के साथ रहे हैं, और पूरी सपोर्ट करते हैं आर्मी की। खाना हो, चाय हो, पानी हो, हम पूरा उनका साथ देते हैं। अम्यूनिशन लेके जाना आगे ट्रैक्टरों पे या कुछ करना, हम साथ में रहते हैं, हम नहीं जाते गाँव छोड़ के। So as you heard there, that even if these people are living very close to a state that is a rogue state, even then the spirits of all these people is absolutely very, very high. Over here, there are 350 people who live in this entire village, but most of them have not been asked to vacate from these villages at this point in time. Definitely, there is this threat that could be sensed at this point because Pakistan is a rogue nation. Pakistan has no morals. Pakistan would not think twice before attacking innocent civilians. We'll try and get in a word from few other people. दादा, आप कब से हैं यहाँ पे इस गांव में? हाँ जी, हाँ इस गांव का हूँ। कब से रह रहे हैं इस गांव में?
जब 1947 बना था तब से हमारे बुजुर्ग इधर आगे थे, इधर लाटमेंट होगी, इधर बैठ गई। तो अभी वो बढ़ गए हैं, हम काम इधर कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से कैसा माहौल रहा है यहाँ पे? हमने 71 का जंग देखा, 65 का जंग देखा, बाढ़ का भी जंग देखा मैंने। 73 साल उम्र, 73वां साल जा रहा है मुझे। बाढ़ का जंग चाइना ने किया था, इंदिरा ने 71 में किया था, शास्त्री ने 65 में किया था। 65 में उन्होंने शंभ जोड़ियाँ बहुत इलाका मिल लिया। शंभ जोड़ियाँ 70 टैंकें का मरा होया उनका जो जूर खाम का मुड़ा भी उसे मिल गया। फिर शास्त्री ऐसे गोले मारे, फौज ने थम पाया और चौंक दे विच सुजानपुर रोड जिस सुजानपुर का रोड जाता है उत्थे पैटर्न टैक चौंक दे विच लाई दे गोल पैरे विच। पिछले कुछ दिनों से कैसा माहौल रहा है जब से पाकिस्तान से थोड़ी? बहुत अच्छा माहौल रहा, कोई उधर कोई गड़बड़ी नहीं करता था, इधर भी शांति से रह रहे थे। जब मोदी ने उनके कैंप 9 कैंप की में स्ट्राइक की, मोदी का तो जो मसला था वो उग्रवादियों को मारना था। पाकिस्तान को कंगाल मुल्क है, सारे आगे भीख मांग रहा है, मेरी मदद करो मदद करो, पे कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एक चाइना से तुर्की है, चाइना से तुर्की उसके साथ है, उनका असर इधर फेंक रहा है। तो हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दे रही है। JNK में तो गोलाबारी चल रहा है। JNK में गोलाबारी चल रहा है तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पाकिस्तान कभी भी गोलाबारी कर देगा और सीधा आपके गांव पर आएगा? जहाँ गोलाबारी करेगा तो हम भी उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो करने वाला हिम्मत नहीं है उसमें। वो उनका जो फ्यूज निकल गया है, आवाज़ निकल गई है, दाना पानी तो उनके लिए खाना पानी तो है नहीं। 2-3 दिन का उसका वरूद है, वो तो भूखा ही मर जाएगा। पानी मोदी ने उनका रोक दिया है। तो अभी देखो, दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझना, और भारतीय फौज ने डट कर मुकाबला कर रही है। पठानकोट में हमला किया, ममून में हमला किया, थे डैम में हमला किया। जो ड्रोन उन्होंने बाड़े पर भेजे थे, हमारी फौज ने उनको हवाई में मार गिराया, उनके खोखे नीचे गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। So this is the spirit of India. This is how India reacts. This is how India responds. Even when a rogue nation is just 200 meters away from here, the spirit of this entire village is absolutely high. They are determined that they will make sure that if at all Pakistan tries to do anything untoward, the entire village will stand with our army. The confidence that these people have on the army is something that the entire country needs to learn about. Many people across the country are very tense that what will happen when, if at all a war starts. People living in far-fetched areas of the countries, they are tensed. But people who are just 200 meters away, from the border of a rogue nation, the posts of a rogue nation, they are confident. They are confident, they are willing to respond to any mischief that is done by this enemy rogue nation. I'll try to get in a word from a few other people as to what has transpired over the last few days. अभी कल जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो इस तरफ से भी ड्रोन छोड़े गए थे या मिसाइल छोड़े गए थे? नहीं, वो ड्रोन तो देखे गए थे 2-3, तो यहाँ से ही गए हो, फिर जाके पठानकोट ममूनगंज में यहाँ हुआ का कुछ। तो कल जब ड्रोन आए तो यहाँ इन्हीं पोस्ट से ड्रोन छोड़े गए थे, दिखा था यहाँ से जाते हुए। तो यहाँ रह के घबराहट नहीं होती क्या बिल्कुल भी कि ऐसा पाकिस्तान जैसा झूठा देश है जो सिविलियंस को मारने से पहले 2 बार सोचेगा भी नहीं? हम तो उनको मारेंगे, अभी कितनी बार देख लिया, 2-3 बार, यही होता रहेगा, डरते रहेंगे। डरने से ज़्यादा आर्मी के साथ चलो ना, उनको मारेंगे जाके, कितनी बार उनको जेलेंगे, जेलते हमारे भी बाल चिटे हो गए, अब हमारे बच्चों के भी बाल ऐसे हो जाएंगे, फ़ायदा क्या? एक बात उनको सबक सिखाना चाहिए ना। तो कहावत तो है ही है कि लातों के फिर बातों से कभी कम मानेंगे। धन्यवाद। So as you heard there, each and every person who is in this village is absolutely sure, is absolutely confident
that a rogue, weak nation like Pakistan will not be able to do anything to them. And if at all there is any mischief that is done by this liar of a country, then all these people are standing in unison with the Indian Army, and the confidence that these people have on our armed forces is something that needs to be applauded. And also our armed forces also needs to be applauded, because they have been able to make sure that even the people who are living closest to the borders, these people are safe, because our army, because our defense systems are awake. It remains to be seen how will the next few days turn out. It remains to be seen if at all Pakistan will yet again step out of its boundaries and try to attack civilians, as it has been doing in Punch and at LAC. But the situation over here at ground zero, at 0 point over here, one thing is for sure, that this is New India, and New India will not bow down to any empty threats that come in from a rogue and liar of a nation. It was 8 p.m. on Thursday when a barrage of drones started coming towards different locations here in the country, starting from Jammu airport, where I'm standing as of now. We have been given to understand that around 500 drones, missiles and rockets were fired at 25 different locations here in the country. Jammu was the initial one, then we saw different locations in Punjab and also in Rajasthan. I'll try to talk to some individuals who were present here when these drones came towards Jammu airport. I'll try to ask them as to what was the sequence, what did they notice, and also as far as the result is concerned. So while we know that air defense successfully thwarted all those attempts, what was that they noticed? Sir, what's your, आपका नाम क्या है सर? हरमीत सिंह। हरमीत जी, कल यहाँ पे 8 बजे करीब हमें पौने 8 बजे के करीब, पौने आठ मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा, पौने 8 बजे क्या हुआ था, अगर हमें एक बार बता पाएं क्या पौने देखा? 8 बजे इधर ड्रोन आया था, एयरपोर्ट के बगल में पास, एयरपोर्ट के पास ही ड्रोन आया था। तो हम देख रहे थे, मतलब जैसे ड्रोन आया था इन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया आर्मी वालों ने। अच्छा, बस ड्रोन वैसे वहां से वापस चला गया था, वापस चला गया? वापस चला गया। हमें बताया गया कि डिस्ट्रॉय कर दिए थे। डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने बोला फटाफट आप शॉप बंद करो। फिर हमने शॉप को क्लोज करना स्टार्ट कर दी 8:30 के करीब। 8:30 के करीब कोई ड्रोन गिरा भी आपने देखा? इधर कोई ड्रोन नहीं गिरा सर, हमारे एयरपोर्ट के पास कोई ड्रोन नहीं गिरा। आर्मी वालों ने बड़ा अच्छा काम किया, हम आर्मी वालों को बहुत थैंक्स करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि देखो ना, जैसे ड्रोन आए इन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो इधर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ड्रोन इधर कोई नहीं गिरा एयरपोर्ट के पास। सेफ्टी बहुत सेफ्टी थी, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। सेफ्टी आर्मी वालों ने बहुत सेफ्टी रखी हमारे लिए, पब्लिक के लिए बहुत सेफ्टी। अभी उम्मीद तो नहीं है कि दोबारा आएंगे, या सर कह नहीं सकते दोबारा कि हम उनको तो थोड़े बोल सकते हैं पाकिस्तान वालों को कि करेंगे नहीं करेंगे। वैसे जवाबी कार्रवाई इंडिया आर्मी ने दी है, बहुत अच्छी दी है इन्होंने, कार्रवाई बहुत अच्छी दी है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग पैनिक ना करें क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस हैं। किसी तरह का डर या पैनिक की स्थिति तो नहीं है स्थिति? सर नहीं, अभी डर का कोई खतरा नहीं है सर, डर का अभी कोई खतरा नहीं। आर्मी हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट कर रही है, हमें डर का किसी चीज़ का खतरा है। जब तो आर्मी है हमें कोई डर नहीं है। हमारे सपोर्ट, हम देखो आर्मी आपके सामने बैठे, एयरपोर्ट के पास मेरी शॉप है, तो आर्मी हमारे साथ ही है, हमें कोई डर का खतरा। Alright, this sort of trust in armed forces. I'll try to talk to some more individuals because this is Jammu airport. This is the same place where we saw the multiple drones trying to attack the infrastructure, trying to attack the properties. I'll try to talk to some more individuals. They have got their shops. आपकी यहाँ दुकान है सर, क्या नाम है आपका? सर जगप्रीत सिंह। कल हमें बताया, जो बराबर में दुकान है, उन्होंने बताया कि काफ़ी ड्रोन वगैरह आए और आप लोगों से बोला गया कि दुकान बंद कर दें। एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या कहें कि किसी ड्रोन ने हिट किया था या कोई गिरा था यहाँ पर? सर इधर कोई नहीं गिरा, इधर कोई गिरा नहीं है, ऊपर ही उन्होंने कर दिया था, इधर गिरा कोई नहीं है। जम्मू सिटी में कहें कि कैसा माहौल है? कहीं लोगों में डर तो नहीं है किसी बात का कि आज रात को दोबारा से कहें कि हमला हो सकता है? सर आप पता नहीं इस बात का आप अपने सेंटीमेंट बता पाएं तो, मगर है आज रात को भी है। आज रात को है? चैम्बर ने बोला कि 5 बजे तक शॉप ओपन है, 5 बजे के बाद शॉप क्लोज। 5 बजे किसने बोला ये? चैम्बर ने बोला किसी ने। अच्छा, हाँ, न्यूज़ में आया हुआ है। हाँ जी। आर्म्ड फोर्सेस पे लेकिन भरोसा है कि आज रात भी अगर कुछ होगा तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? हाँ भरोसा तो है सर, भरोसा तो होता है उनके, CISF सभी भरोसा ही है। Alright, so they have been asked to close their shops by 5 p.m. today, and they have some sort of trust in the armed forces as well, but there is a sort of fear in the tone
in the tone of the individual with whom I was talking. I have some more shops. I'll try to talk to them as well, and we'll try to ask them as to what was the overall assessment as far as this particular attack is concerned. माता जी, आप यहीं रहती हैं? आप हमें बताइए, कल यहाँ थी जब ये अटैक वगैरह हो रहा था? रात को हम घर में अपने घर, हम बाहर रहते हैं। रात अपने, अच्छा, बाहर रहते हैं। पता तो चला होगा? हाँ, देखा हमने। तो किसी तरह का नुकसान यहाँ आसपास किसी को कुछ नुकसान देखा। नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ, नुकसान। अच्छा काम किया आर्मी वालों ने, एयरफोर्स वालों ने? हाँ, अच्छा किया, अच्छा किया। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, ठीक है। All right. So this is the sentiment as far as this place is concerned. I'll try to show you the board. This is airport of Jammu, from where we have a number of flights in the routine days, though it is with the Air Force as of now because of the kind of conditions that we have in the country and in the city specifically. Last night, several attempts were made to destroy several sort of air defenses, and there were targets within the airport, but all of these attempts were thwarted by the Indian armed forces. And now at this point in time, while people are anticipating that some attack would be happening this evening as well, they are also very sure that armed forces are there to protect them.